نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے شادرہ اور امامیہ کالونی پھاٹک فلائی اوور پروجیکٹ کے دورے محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ اور پل کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈرینیج کا کام مزید تیز کرنے کا حکم جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ شادرہ اور امامیہ کالونی فلائی اوور پروجیکٹس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ میری پوری ٹیم صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک کام کرتی ہے۔ منصوبے مکمل ہونے سے شادر چوک پر ٹریفک کا رش کا بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ امامیہ کالونی فلائی اوور اگلے ماہ تک مکمل کر دیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، تینوں شفٹوں میں کام کر رہے ہیں اور یہ کافی لمبا اور ہیوی پروجیکٹ ہے۔ ابھی میں میر صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب ہم ابھی امامیہ کالونی والے برج سے بھی ہو کے آئے ہیں۔ ادھر بھی پروگریس بڑی اچھی طرح جاری ہے، آلدو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اگر ہمیں فکر ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں پہ جو لوگ جا کے نہ پھنس جائیں، تو اس کے اوپر بھی دن رات کام جاری ہے۔ ان کی بھی ڈیڈ لائن نومبر کا اینڈ ہے اور ہمیں یہاں کا بھی ہے کہ یہ بھی اس مہینے کے اینڈ تک یا اس مہینے کے کسی بھی وقت میں ہم اس کو ختم کر لیں۔ تو مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لوگ ایل ڈی اے کی ٹیم بھی، کانٹریکٹر بھی سارے دن رات لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلدی ختم کر لیں گے، بیکاز یہ دونوں برج بننے سے اس پورے علاقے میں بہت بڑی چینج آئے گی اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کو فائدہ، جی ٹی روڈ والوں کو فائدہ، اس سے بڑا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کو محفوظ ماں پروگرام کے لیے 214 ایمبولینسز فراہم کر دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ پہلے دن سے صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے چھوٹے گھروں پر کوڑے کے چارجز لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ پنجاب بھر کے تھیٹرز کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات جاری۔ LDA 1 ونڈو سیل کے دورے کے دوران شہریوں کی شکایت پر منشا بم اور دیگر قبضہ گروپوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور شہر میں انتہائی مصروف دن گزارا، مختلف اجلاسوں کی صدارت اور تقریبات میں شرکت کی۔ LDA 1 ونڈو سیل اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ بھی کیا۔ محفوظ ماں ایمبولینس سروس فراہمی کی نشریات کمپلیکس میں تقریب میں شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو 214 ایمبولینسز فراہم کر دی گئیں۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی صحت کے نظام میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کے لیے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم ریفارم یا تھوڑی بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ ایمبولینس سروس بھی اس کا حصہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس میں عملے سے ملاقات کی، ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی۔ چھوٹے گھروں پر کوڑے کے چارجز لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ لاہور کی بڑی سوسائٹیز میں صفائی کا نیا قابل عمل پلان بھی طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا پنجاب بھر کے تھیٹرز فوری طور پر کھولنے کا حکم۔ محسن نقوی کو اجلاس میں 150 برس پرانے ڈرامہ ایکٹ 1876 میں مجوزہ ترامیم پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر ثقافت عامر میر نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ LDA 1 ونڈو سیل کے دورے کے دوران محسن نقوی نے شہریوں سے ملاقات کی، بعض سائلین کی شکایات پر منشا بم اور قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ متاثرین کو حق دلوائیں گے، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، منشا بم اور اس طرح کے دیگر قبضہ مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان 3 روز میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کو یقینی بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جڑاں میں 9 گرجا گھروں کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دیگر 13 گرجا گھروں کی بحالی کا کام 2 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی ٹیم کو جڑاں کا دورہ کر کے رپورٹ تیز کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ٹیم صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، اظفر علی ناصر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اور سیکرٹری اوقاف پر مشتمل ہوگی۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں طلباء اور بزرگ افراد کو مفت سفر کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے 15 ستمبر سے مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اورنج ٹرین اور میٹرو بس میں طلباء و طالبات کے لیے مفت سفر کا معاملہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر سے اورنج ٹرین اور میٹرو بس میں طلباء و طالبات مفت سفر کر سکیں گے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے سفر کے SOPs وضع کر دیے۔ 12ویں تک کے طلباء اور طالبات جو اسکول یونیفارم میں ہوں گے اور ان کے پاس اسکول کارڈ ہوگا وہی اورنج ٹرین اور میٹرو بس میں پیر تا جمعہ مفت سفر کر سکیں گے۔
स्पीडो बस सर्विस में मुफ्त सफर की सहूलत नहीं दी जाएगी। मार्च 2023 में भी तुलबा और बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफर की सहूलत दी गई। तलबा इदारे का कार्ड और बुजुर्ग शहरी शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त सफर कर सकते थे। मुफ्त सफर की सहूलत 2 माह बाद मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने बगैर नोटिफिकेशन खत्म कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब ने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में सफर के दौरान तुलबा की शिकायत पर गुज़िश्ता माह मुफ्त सफर की सहूलत फराम करने का ऐलान किया, जिस पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अमल नहीं किया। अब आपको बताएं कि PIA का 260 अरब रुपए कर्ज 2 साल के लिए मौखर किए जाने का इम्कान सामने आया है, जबकि FBR ने माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन के मुंजमद तमाम अकाउंट्स भी बहाल कर दिए हैं। PIA का 260 अरब रुपए का कर्ज 2 साल के लिए मौखर होने का इम्कान पैदा हो गया। ज़राए का कहना है कि PIA के कर्ज को मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम की गई है। इखराजात और माली ऑपरेशंस के लिए PIA को 14 अरब का नया कर्ज भी मिल जाएगा। PIA ने वजारत खजाना से माली ऑपरेशंस के लिए 23 अरब रुपए मांगे थे। PIA ने फ्लाइट टिकट्स पर मिलने वाली फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अदा नहीं की थी। PIA ने हुकूमती गारंटी की बना पर मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों से कर्जा भी ले रखा है। दूसरी जानिब FBR ने PIA के तमाम मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। FBR के मुताबिक PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह अदायगी की यकीन दहानी कराई है। रवा माह PIA FBR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगा। मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए की अदायगी PIA ने करनी है। FBR ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को शदीद माली मुश्किलात का सामना था। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें जारी करने में भी ताखीर हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने PIA की इस्लाहात के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। कैमरा टीम के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर ने इंसदादे स्मोक, सेहतमंद माहौल और मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग के लिए साइक्लिंग इवेंट मुनक्किद कराने की हिदायत जारी की। कहते हैं लाहौर शहर हमारा घर है, इसमें सेहतमंद माहौल के फ़रोग के लिए शहरी आगे आएँ। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि माहौल में बेहतरी लाने के लिए ठोस इक़दाम ना किए गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इंसदादे स्मोक से मुतालिक इजलास MCL, ज़िला इंतजामिया, LDA और PHA के ताउन से फैमिली साइकिलिंग इवेंट के इनेकाद का फैसला। इतवार 17 सितंबर को शाम 5 बजे फैमिली साइकिलिंग इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। लिबर्टी गोल चक्कर से सदीक ट्रेड सेंटर तक बाईसाइकिल के लिए ग्रीन लाइन मुख्तिस की जाएगी। साइकिलिंग ग्रुप्स, फैमिलीज, बच्चे और मीडिया हाउसेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। कमिश्नर लाहौर ने साइकिलिंग इवेंट्स को सालाना में शामिल करके मुस्तकिल साइकिलिंग सीरीज शुरू करने की हिदायत की। DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत एंटी स्मोक स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन में तेजी लाने का फैसला। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने ऑपरेशनल प्लान पर ब्रीफिंग दी। रवां साल 148 स्टील मिल्स को सरबा मोहर, 78 FIRs का इंदराज, 25 अफराद को हिरासत में लिया गया। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले प्लांट्स को भी सील किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि कानून के मुताबिक आलूदगी फैलाने पर इंडस्ट्रियल यूनिट को जुर्माने की बलाई हद 1 करोड़ रुपए तक की जाएगी। फसलों की बाकियात जलाने वालों को 15,000 फी एकड़ के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। भट्टों पर ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी की मौजूदगी को रात के वक्त सरप्राइज चेक किया जाएगा। शहर में गर्मी और हब्स का सिलसिला बरकरार। महकमे मौसमियात की कल से 20 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, मौसम का अहवाल बताइए। में बदस्तूर गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शहर लाहौर में जो है वो कल से खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी और जिसके बाइस ये देखा जाएगा कि 15 से 20 सितंबर के दौरान लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में तेज आंधी और वक्फे से बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ताहम 17 से 19 सितंबर के दौरान बारिशों के बाइस चित्राल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी की शहर में बारिशों का इम्कान है। लाहौर शहर में गर्मी और हब्स का सिलसिला भी बरकरार है। सामिया अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।
लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 1,86,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,09,000 तलबा कामयाब रहे। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 58% रहा। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। 1,86,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,09,000 तलबा कामयाब ठहरे। इम्तहानात में कामयाबी का मजमूई तनासुब 58% से जायद रहा। तालीमी मैदान में लड़कियां फिर लड़कों से आगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात में तालबात की कामयाबी का तनासुब 66% रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का तनासुब 48% है। नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर मिर्जा हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि 10% उम्मीदवारों ने A+, 16% ने A और 24% ने B ग्रेड हासिल किए। ओवरऑल परसेंटेज है, पास परसेंटेज वो इंटर क्लास 12 के लिए 58.67% है। बॉयज़ जो है इनकी टोटल ओवरऑल जो पास परसेंटेज है वो 48.86% है। लड़कों की जो पास परसेंटेज है वो 48.86% है, लेकिन जो बच्चियों की पास परसेंटेज है वो 66.82, 66.82। तो इस लिहाज से ये एक वाज़ेह फ़र्क है जो बच्चियों की पास परसेंटेज में है। इम्तिहानी नताइज की तकरीब में कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान और सेक्रेटरी बोर्ड बुशरा ने भी शिरकत की। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कैमरामैन फैसल नवाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से बात करूं और आपको बताएं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक बार फिर सबसे आगे। आला तालीमी मयार और शानदार नताइज की रवायत को रखा बरकरार। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात में पहली 3 में से 2 पोजीशंस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा ने अपने नाम की। लाहौर बोर्ड में 12 पोजीशंस हासिल की। पंजाब कॉलेज मुल्तान के तालिब इल्म अहमद ओन आसिफ ने पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर पहली पोजीशन अपने नाम की। आला तालीमी मयार, नताइज भी शानदार, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की रवायत बरकरार। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात के नताइज में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने सबको पीछे छोड़ दिया। मजमूई तौर पर लाहौर बोर्ड में 12 पोजीशंस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा के नाम रही। लाहौर बोर्ड के अलावा पंजाब के तमाम बोर्ड में पंजाब कॉलेज 171 पोजीशन के साथ सरे फहरिस्त रहा और मजमूई तौर पर तमाम बोर्ड में पहली पोजीशन भी पंजाब कॉलेज के तालिब इल्म के नाम रही। पंजाब कॉलेज मुल्तान के होनहार तालिब इल्म अहमद ओन आसिफ ने 1069 नंबरों के साथ पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब कॉलेज के एक और ज़हीन तालिब इल्म मोहम्मद अहमद ने 1055 नंबर लेकर दूसरी, जबकि सैयद मोहम्मद जुहैर अली 1050 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर रहे। पोजीशन होल्डर मोहम्मद अहमद और सैयद मोहम्मद जुहैर अली का ताल्लुक पंजाब कॉलेज फिरोजपुर रोड लाहौर से है। मेन जो रोल है सब पंजाब कॉलेज का ही है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने मुझ पर यकीन रखा। यहाँ का जो सिस्टम है, डेली टेस्ट वगैरह का सिस्टम है, फिर सेंडअप्स का सिस्टम, FLPs, ये एंड तक स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्रिपेयर करते हैं। मैं हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर वो चाहता है कि उसका एक फ्यूचर में उसकी सीट मेंटेन हो जाए और उसके लिए रिजर्व हो जाए तो पंजाब कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी का कहना है कि पंजाब कॉलेजेस का माहौल और तालीमी निज़ाम तलबा की सलाहियतों को निखारता है। इदारे का जो रोल होता है इंस्टीट्यूशन का, वो ये होता है कि इनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें जिसमें ये अपने पोटेंशियल को, अपनी सलाहियत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसमें हर साल हम कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी देता है। हम हर साल नए जज्बे के साथ और चीज़ों को रिफाइन करके मज़ीद आगे लेके चलते हैं। पंजाब के 9 बोर्ड्स में से 7 बोर्ड्स में पंजाब कॉलेज के तलबा ने मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। कुछ बात करें डेंगू के हवाले से तो डेंगू ने शहर में पंजे गाड़ लिए हैं। लाहौर में डेंगू के 63 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में मजीद 130 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल सूबे में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 2270 तक पहुँच गई। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 63 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 130 मरीजों में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। रवां साल लाहौर में डेंगू के 945 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2270 तक पहुँच चुकी है।
है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान के मुताबिक जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 70 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 165 मरीज दाखिल हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2678 बेड्स मुख्तस हैं। 137 बेड्स डेंगू मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने कहा है कि साफ और खुश्क माहौल डेंगू वायरस से महफूज रखता है। शहरी डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। तवील अरसे से नज़रों से ओझल शाही किले की इब्तदाई तामीर के मुतअद्दिद शानदार आसार सामने आ गए। अकबरी दरवाजे से मुल्हिका आसार को अकबरी पैलेस का हिस्सा करार दिया जा रहा है। सामने आने वाले आसार कदीमा लगभग 475 साल कदीम हैं। ये लाहौर के शाही किले का शानदार अकबरी दरवाज़ा है, जिसे 1550 में शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर कराया था। इससे बिल्कुल मुल्हिका ये चटियल सी जगह दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके नीचे भी तारीख के कुछ शानदार आसार मौजूद हैं। जब अकबरी दरवाजे की मुरम्मत के लिए यहाँ खुदाई का काम शुरू किया गया तो इसी दौरान कुछ शानदार तामीरात सामने आ गईं। अकबरी दौर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मलबूम के अंदर दबे हुए हैं और वो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी प्रेजेंस है बिलो द स्ट्रक्चर। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो जो मुल्हक़ जो स्ट्रक्चर हैं अकबरी दौर के 1550s ऑनवर्ड, वो भी उसकी भी प्रिजर्वेशन होगी। सामने आने वाली तामीरात को उसी दौर के आसार करार दिया जा रहा है जब अकबरी दरवाज़ा तामीर किया गया था, लेकिन फिर ये वक्त के साथ ज़मीन में दबते चले गए। इन आसार की साख्त बताती है कि ये किसी शाही महल का हिस्सा रहे होंगे। रवायती मुगल तर्ज तामीर की हामिल छोटी ईंट से बनी इन तामीरात में बहुत बड़ा हॉल और उसके साथ मुल्हिका कुछ सुरंगें और छोटे कमरे दिखाई देते हैं। ये प्राइमरी एंट्रेंस थी और इसके साथ अकबरी महल लगता था। तो सरफेस से लेकर स्ट्रक्चर तक ये लेयर्स में हम चल रहे हैं। हम जिस तरह लेयर्स में भी जा रहे हैं उसी तरह हमें वो चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो फर्श का हो, चाहे वो दीवार का हो, चाहे वो छत का हो। इस तरह हमें और मिली जा रही हैं चीज़ें। माहिरीन के मुताबिक इन तामीरात को लाहौर में होने वाली मुगल तामीरात का इब्तदाइया भी समझा जा सकता है। जब भी माजी का कोई नया नक्श हमारे सामने आता है तो वो अपने साथ तारीख का एक पूरा दौर लेकर आता है। सो इस बात के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि यहाँ से तारीख़ के बहुत से नए मज़ीद दर वाह होने वाले हैं। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त मजीद 4 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 494 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 3 रुपये तक कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 317 जबकि परचून रेट 329 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 285 रुपये फ़ी दर्जन मुकम्मल। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतों में मजीद कमी की गई है और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर की खपत जो है गैर मामूली सतह पर आ चुकी है, क्योंकि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की जानिब से उसकी खरीदारी जो है वो तर्क की गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और अब कीमतें जो है वो कम होने लगी हैं। आज मजीद 4 रुपये तक ब्रायलर गोश्त जो है वो सस्ता किया गया। 494 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपये की कमी की गई है। होल सेल जिंदा ब्रायलर 317 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 329 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमतें 285 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी 8,430 रुपये की मार्केट में मुकर्रर की गई है, जबकि शहरियों को फ़ी दर्जन अंडे जो है 290 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमत जो है 494 रुपये आज मुकर्रर की गई है। जी, साथ में ये भी अपडेट कीजिएगा कि कीमतों में मजीद कितनी कमी मुतवक्के है। आज बिल्कुल इस हवाले से जो है ट्रेडर्स की जानिब से जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अंडों की कीमतों में भी कमी जो है की जा सकती है, क्योंकि अंडों की खपत कम हुई है। जबकि ब्रायलर ट्रेडर का ज़राए का कहना है कि अंडों की जो ब्रायलर की सप्लाई है अब वो बेहतर होने लगी है। मार्केट में 60 से 70% तक ब्रायलर की सेल जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड जो है इंतहाई कम सतह पर है। और यही वजह है कि अगर सप्लाई इसी तरह रही और डिमांड जो है ना बढ़ी तो कीमतें मजीद कम हो सकती है, क्योंकि पहले ही कीमतें जो है वो तकरीबन 100 से 130 रुपये फ़ी किलो तक जो है कम हो चुकी हुई है और रोजाना की बुनियाद पर कीमतें कम हो रही हैं। और अगर जो ब्रायलर जो दिमाग किया उसकी जानिब से मसनूई किल्लत पैदा की गई तो फिर कीमतों में जो है इजाफे का खर्चा। ताहाल मार्केट में जो डिमांड है वो इंतहाई कम सतह पर है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी हो रही है।
जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात बताने के लिए। तो ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर होने लगी है। मुर्गी का गोश्त मज़ीद 4 रुपये सस्ता हो गया, फ़ी किलो कीमत 494 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 3 रुपये तक कमी सामने आई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 317, परचून रेट 329 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया। फार्मी अंडों की कीमत में 285 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दी गई। तो ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर होने लगी है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बने हुए हैं। आपका इलेक्शन से क्या काम? चीमा फवाद, हसन फवाद और तौकीर शाह हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्हें वजीर बनाकर नून लीग के काम करवाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की कायम मकाम सदर राना फारूक सईद और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहने लगे, मुल्क में अगर कोई तब्दीली आनी है तो हमारी क़यादत के वीएन से आएगी। बिलावल की राबता मुहिम से अवाम में इलेक्शन की उम्मीद नजर आई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये ऐलान किया कि हम इंतखाबात 90 दिन के अंदर चाहते हैं और वो कराची से अवाम राबता मुहिम के लिए निकले, तो उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर एक इंतखाबात के इनकाद की उम्मीद नजर आई। कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा कि 14 मई को पंजाब और KPK में इलेक्शन करा दिए जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नून लीग की वजह से 14 मई का इलेक्शन नहीं हो सका। हम साफ शिफाफ इलेक्शन चाहते हैं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन अब हो वो फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वो किसी जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। इसमें पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सबको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। PTI को भी इलेक्शन लड़ना देना चाहिए। राना फारूक सईद का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमतों का काम शिफाफ इलेक्शन कराना है। यहाँ चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक नून लीग के बंदे लगाए गए तो बहुत बुरा रिजल्ट आएगा जो मुल्क के लिए खतरनाक होगा। नून लीग वाले मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई शौक नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का मामला LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। जहांगीर इकबाल को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट का मामला। LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर इकबाल के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू। डायरेक्टर हाउसिंग मौज़म रशीद और डिप्टी डायरेक्टर यावर बशीर इंक्वायरी ऑफिसर्स मुकर्रर। असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर इकबाल को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इंक्वायरी कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। LDA अफसरान पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। पंजाब हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की पोस्ट लगाने की भी इजाजत नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर इकबाल कायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1996 के तहत सरकारी अफसरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहांगीर इकबाल की सोशल मीडिया पर पोस्ट से पंजाब हुकूमत की बदनामी हुई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सूबाई के साथ साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी नवाज दिया गया। कई साबिक अरकान कौमी असम्बली के हिस्से में अरबों मुतद्दिद को करोड़ों रुपए देना मंजूर शुदा फंड से सड़कों, गलियों, सीवरेज की मुरम्मत और बहाली की ताज़ीन व आराइश भी की जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत में 186 तरक्याती स्कीमों की इजाज़त दे दी गई। साबिक अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती कामों की मद में 7 अरब 71 करोड़ 8 लाख रुपए के फंड्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने समरी बराए मंजूरी इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कबीना कमेटी को भिजवा दी। हल्का NA 132 में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 54 स्कीमों के लिए 3 अरब 87 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर। NA 124 में हमजा शहबाज की 6 स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। NA 123
123 में मलिक रियाज की 24 स्कीमों के 20 करोड़ रुपए, NA 125 में वहीद आलम खान की 2 स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई। NA 126 में महर इश्तियाक की 13 स्कीमों के लिए 20 करोड़ रुपए, NA 127 में अली परवेज की 6 स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। NA 128 में शेख रोहेल असगर की 5 स्कीमों के लिए 20 करोड़ रुपए, NA 129 में सरदार अय्याज सादी की 2 स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। NA 130 में ख्वाजा अहमद हसान की 3 स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए, NA 131 में ख्वाजा साद रफी की 24 स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर। NA 133 में शाइस्ता परवेज मलिक की 9 स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए, NA 134 में राना मुबशर इकबाल की 39 स्कीमों के लिए 1 अरब 94 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर हुए। NA 135 में सैफुल मलूक खोखर की 5 स्कीमों पर 20 करोड़ रुपए, NA 136 में मोहम्मद अफजल खोखर की 6 स्कीमों के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तरक्याती कामों के फंड्स की मंजूरी इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत होगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मोहम्मद नुमान ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में पंजाब हुकूमत और पुलिस भरपूर ताउन कर रही है। डेट डिफॉल्टर से रिकवरी मुश्किल अमल था, लेकिन तहसीलदारों की तैनाती से रिकवरी में मदद मिलेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को का इकबाल टाउन में लेस्को गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा। हाफिज मोहम्मद नुमान ने स्कूल में इंतजामात का जायजा लिया और तालिबात को दी जाने वाली सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज मोहम्मद नुमान ने कहा कि लेस्को के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों को अपग्रेड करना है। लेस्को के स्कूलों में ऐसी बेहतरी लाएंगे कि लोग बच्चों को दाखिल कराने के लिए कतार में लगे होंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हमने लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम जो भी तालीमी निज़ाम चल रहा है उसको हमने अपग्रेड करना है और उसको हमने जो लाहौर के या पाकिस्तान के जो प्राइवेट सेक्टर के जो बेहतरीन स्कूल हैं हमने उनको उनके बराबर इनको लेके आना है। ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इसको हमने इस मयार पे लेके जाना है कि इंशाल्लाह ताला लेस्को के स्कूल्स के अंदर एडमिशन के लिए बच्चों की एक क्यू लगी होगी और वालिदैन की ख्वाहिश होगी कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर इस स्कूल में दाखिल करवाएं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने मजीद कहा कि इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है। अब तहसीलदार आए हैं जिससे रिकवरी में बहुत मदद मिलेगी। पुलिस की लेस्को को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। खुली कचहरियों को ई कचहरियों में बदल रहे हैं। आज से 7 माह पहले से मैं ज़ाती तौर पर मिनिस्ट्री के साथ मेरी इंटरेक्शन मौजूद है और आज मैं समझता हूँ कि तहसीलदार रिकवरी आए हैं जिससे रिकवरी में बड़ी हेल्प मिलेगी। आज पुलिस की सपोर्ट मिल गई है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की सपोर्ट मिल गई है, आज लेस्को को हुकूमत पंजाब की सपोर्ट मिल गई है। चेयरमैन BOD लेस्को का कहना था कि लेस्को आम आदमी का इदारा है। हमने एक्सीएन और SDOs के दफातर पब्लिक के लिए खोले ताकि सारिफीन को आसान रसाई मिले। खबर ये है कि बिजली चोर मुसलसल शिकंजे में है। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 7वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। तमाम सर्कल में 411 कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का 7वां रोज। ऑपरेशन के दौरान 411 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 2 ज़रई, 12 कमर्शल और 397 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उन्हें 3,72,36,00,000 के डिडक्शन बिल चार्ज किए गए। कार्रवाइयों के दौरान कुल 1,954 कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। 1,954 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, जिनमें से 1288 दरख्वास्तें रजिस्टर्ड। 99 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरों को 24,50,20,314 रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़े ज़रई और कमर्शियल सारिफीन भी चोरी में मुलविस पाए गए हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। बरतानिया में मुबैना कत्ल होने वाली 10 साला बच्ची सारा शरीफ का कत्ल। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की सारा शरीफ के बहन भाइयों से मुलाकात। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि अदालती हुक्म पर सारा शरीफ के 5 बहन भाइयों को तहवील में ले लिया गया। बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वहाँ पे कल रात को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब को 5 बच्चे जो कि ब्रिटिश नेशनल्स हैं वो कस्टडी में मिले। उनकी लीगल कस्टडी यहाँ पे कोर्ट ने दी है। इन कोर्ट के ऑर्डर्स पे हमने इन 5 बच्चों की कस्टडी ले ली और इनको ये हमारे लाहौर में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुकीम है वहाँ पे रह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हमारे पास इनकी कस्टडी है इनकी बेहतरीन देखभाल, इनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इनके खाने पीने का ख्याल किया जाएगा, यहाँ तक कि जो वो बच्चे मांग रहे हैं हम उनको वो दे रहे हैं ताकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। ये बच्चे जो है वो ट्रॉमा का शिकार हैं
اور بہت ڈسٹربڈ ہیں, وہ بات بھی نہیں کر رہے کسی سے, جو اسپیشلی جو بڑا بچہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو ہم ایموشنلی ان کو اسٹیبل کرنے میں ہیلپ کریں, ہماری ٹیم کی مدد سے, ہمارے سائیکالوجسٹ کی مدد سے. اور یہاں پہ ہم نے سیفٹی اور سیکیورٹی رکھی ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈر ان سے مل نہیں سکتا, میڈیا کو بھی الاؤڈ نہیں ہے ان سے ملنا. یہاں پہ میں بھی ان سے ملی ہوں, ان سے وقت گزارا ہے کافی, اور ہماری پوری کوشش ہوگی ان کو بہترین فیسلٹیز دیں جب تک یہ ہماری کسٹڈی میں ہے. پھر جو کورٹ آرڈر کرے گا اس کے تحت ہم اس پہ ایکشن. مہنگائی ہر چیز کو نگلنے لگی ہے. سبزیاں, پھل اور پولٹری مصنوعات عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے. انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں بھی مسلسل ناکام ہے. شہری اشیاء ضروریہ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں. مہنگائی کا شکنجہ مزید سخت ہونے لگا. عوام کی قوت خرید جواب دے گئی. سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے. اوپن مارکیٹ میں سبز مرچ 160, ٹینڈے 220, آلو 100 روپے فی کلو ہیں. کھیرا 160, بند گوبھی اور پھول گوبھی 170, شلجم 190 روپے فی کلو دستیاب. بھنڈی 160, شملہ مرچ 260, اروی 180, گاجر چائنا 140 روپے فی کلو مل رہی ہے. پھلوں میں سیب کالا کولو 350, انار دانہ 1000, آڑو 420 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں. کیلے درجہ اول 180 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں. بڑھتی مہنگائی پر عوام کی دہائی, کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا. پھل تو ہم کھا ہی نہیں سکتے. چھوٹا گوشت ہم نے آج تک نہیں کھایا, بڑی عید کو کھایا تھا. 2200 سے 2400 روپے کلو ہے, اور بڑا گوشت بھی بہت مہنگا, ہماری پہنچ سے دور ہے. پھل کا کھانے کا تو موقع ہی نہیں دیتے, کیونکہ بل اتنے آ جاتے ہیں کہ بل دینا محال ہے. 25,000 جس کی سیلری ہے اس نے 30,000 روپے بل دینا, تو وہ 5,000 کسی سے پکڑ کے جمع کروانا, تو کیا کروانا ہے. برائلر گوشت 12 روپے کمی کے بعد 498 روپے فی کلو پر آ گیا, جبکہ فارمی انڈے 18 روپے سستے ہو کر 285 روپے فی درجن پر آ گئے. کیمرامین بلال علی کے ساتھ عبدالقادر, لاہور نیوز. ڈالر کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ روپے کو سنبھالا ملنے لگا ہے. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی واقع ہوئی. انٹر بینک ڈالر ریٹ میں مزید کمی ہو گئی, تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ میں 1 روپے کا اضافہ ہوا. تفصیلات کے مطابق بدھ کو انٹر بینک ڈالر ریٹ میں کمی کا رجحان برقرار رکھا. انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 1 روپے 6 پیسے کی کمی کے بعد 298 روپے 82 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے اضافے سے 298 روپے کا ہو گیا. مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ غیر حقیقی حد تک انٹر بینک ریٹ سے کم ہو گیا. اب اوپن مارکیٹ میں زیادہ خریداری ہونے پر معمولی تیزی دیکھی گئی ہے. سابق آئی جی اور سینیٹر رانا مقبول احمد کی نماز جنازہ رائے ون روڈ پر ان کی رہائش گاہ پر ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات اور پولیس افسران نے شرکت کی. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے مرحوم کو سلامی پیش کی. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سابق آئی جی اور سینیٹر رانا مقبول احمد کی نماز جنازہ ادا. مرحوم کی نماز جنازہ رائے روڈ پر واقع ان کی رہائش گاہ پر ادا کی گئی. پولیس کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی. رانا مقبول احمد کی نماز جنازہ میں اہم سیاسی, سماجی اور پولیس افسران کی شرکت. نماز جنازہ میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی, سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ, لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر, آصف کرمانی, سینیٹر مشاہد حسین, سی ایس پی لاہور بلال صدیق کمیانہ, ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی, خواجہ خالد فروق, راؤ سردار, امجد جاوید سلیمی, سینئر صحافی و تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی بھی شریک ہوئے. مسلم نون کے سینیٹر رانا مقبول احمد کچھ عرصہ سے علیل تھے اور مقامی نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. رانا مقبول پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے. رانا مقبول احمد نے فوجداری قوانین میں ترامیم کے حوالے سے خاصا کام کیا تھا. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ زین علی, لاہور نیوز. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی افا کالج آمد ہائر ایجوکیشن پنجاب کے زیر اہتمام صوبائی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. مزید تفصیلات کے مطابق ہائر ایجوکیشن پنجاب کے زیر اہتمام انٹر کالج کھیلوں کے مقابلے کا جمعرات سے آغاز ہوا. صوبائی سطح کے ان مقابلوں میں لاہور ڈویژن کے 196 مرد و خواتین کھلاڑی شریک ہوں گے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے افا کالج میں خصوصی تقریب میں شرکت کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. محمد علی رندھاوا نے کہا کہ پوری محنت اور لگن سے کھیلوں میں شرکت کریں. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے.
शहर लाहौर में पासपोर्ट का हसूल चैलेंज बन गया। गार्डन टाउन ऑफिस के बाहर शहरियों का रश। धूप में खड़े मर्द व खवातीन के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। कोई भी सरकारी काम हो, खवारी पक्की है। पासपोर्ट बनवाना है तो फिर भी परेशानी उठाना पड़ती है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों की लंबी कतारें, बैठने की जगह, न पानी मयसर। शहर के 4 पासपोर्ट दफातर में रश के बायस एजेंटों और टाउट माफिया का राज। गार्डन टाउन ऑफिस के बाहर हर कदम पर एजेंट मौजूद। लाइन में न लगने और VIP प्रोटोकॉल के लिए रेट्स मुकर्रर कर दिए। पासपोर्ट ऑफिस के गार्ड्स भी मुबैना तौर पर एजेंटों के सहूलतकार बन गए। चोर दरवाजे से ऑफिस के अंदर दाखिले का 1000 से 1500 तक वसूल किया जा रहा है। शहरी गार्डन टाउन ऑफिस के बाहर धक्के खाने पर मजबूर हैं। साइलिन ने इल्जाम लगाया है कि पैसों के बगैर अंदर जाना नामुमकिन है। घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। पैसे देने वालों का काम जल्दी हो जाता है। जो पीछे से आ रहे हैं 2-2 घंटे पहले, वो अंदर जाके अपना काम करो, और हम जैसे लोग जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो बाहर खड़े हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो अमला बैठा हुआ है उन्होंने इन डीलरों को हायर किया हुआ है, ठीक है, और ये डीलर वहाँ से करप्शन करते हैं, उनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। पैसे के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, जो मर्जी कर। यहाँ पे अगर वो 3000 रुपये फीस है पासपोर्ट की, 1500 रुपया एजेंट अंदर भेजने का ले रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ कलीम का कहना था कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को जल्द दरख्वास्त देंगे। लाइनों से बचने के लिए लोग एजेंटों के हाथों लुटते हैं। मेट्रो बस के बढ़ते हादसात, मेट्रो ट्रैक की हालत जार बड़ी वजह करार। स्टेशन के जंगले, बैरियर, इलेक्ट्रिक सामान की टूट फूट और खराब लाइट्स का इंकशाफ। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। मेट्रो बस के ट्रैक पर हादसात मामूल बन गए। मेट्रो ट्रैक की हालत जार बस हादसात की बड़ी वजह करार। स्टेशन के जंगले, बैरियर्स, इलेक्ट्रिक सामान की टूट फूट और खराब लाइटों का इंकशाफ। ठेका दे दिया मगर मुरम्मत और बहाली का काम शुरू न हो सका। शाहदरा से गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में इदारों की नाअहली भी शामिल। मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब हैं। ट्रैक और एड ग्रेड पर लगे 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, एक ट्रांसफार्मर भी जल चुका। एड ग्रेड की 10 अर्थिंग पिट्स, डेटा कैबिन और 2 एयर कंडीशनर्स भी गैर फाल हैं। मेट्रो स्टेशन की 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर नस्ब 31 पंखे भी बंद हैं। मेट्रो बस की मुरम्मत के लिए 3,86,41,000 रुपए का तखमीना लगाया गया, मगर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रकम खर्च न की। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो ट्रैक की मुरम्मत और बहाली जारी है। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में नंबरदार और चौकीदार की सीटें खाली रह जाने पर डेप्यूटी कमिश्नर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का इजलास में कहना था कि नंबरदार और चौकीदारों की खाली सीटें पूर्ण करने का फैसला कर लिया गया। नंबरदार और चौकीदार देहात से रेवेन्यू इकट्ठा करने में कामयाब हुए। चौकीदार नंबरदार के मातहत होगा। सीनियर मेंबर नबील जावेद का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर महीने में 1 बार नंबरदारों से मीटिंग करेगा।